Chalo, good morning. Let's start now. Which question we were at? We were at question number 12, na? Okay. So type 2 का question number 12, 11 and 4 हम लोगों ने किया था, correct? Now type 3. Type 3 का question number 1 हो चुका था क्या? Yes. Type 3 का question number 1 हुआ है या नहीं है? प्लीज बताओ कोई तो. श्रद्धा तुम लोग क्लास में हो या आज घर से कर रहे हो? Type 3 question number 1. Integral x square e raised to 3x dx. So, chalo, u into v. What was the formula? Integral u v dx is equal to u integral v dx minus integral du by dx integral v dx dx. संतोष अटेंड कर रहा है? कुछ नहीं है आज. उमेर भी नहीं है आज. तो संतोष तुम लोग सब साथ में बैठे हो क्या? श्रद्धा कौन कौन है उधर क्लास में? ओके तो बस देखो ठीक है. चलो विच इज यू विच इज वी देयर इज अ रूल LAE है ना. उसके हिसाब से अपन डिसाइड करते हैं कौन सा यू होना चाहिए कौन सा भी होना चाहिए. एक्स स्क्वायर अल्जेब्रिक फंक्शन है e raised to 3x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. ओके तो यस a is what? Algebraic. So this is u and this is exponential, so this is v. Okay. हाँ कल से ऑफलाइन होगा, आज के लिए ऑफलाइन नहीं है. मुझे एक्चुअली आने में थोड़ा सा लेट हुआ तो कल से ऑफलाइन होगा. ठीक है तो चलो u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du by dx इंटीग्रल v dx. ओके तो यस what next? What next? X square. What is integration of e raised to 3x? E raised to x is what? E raised to x. So what is e raised to 3x? E raised to 3x upon coefficient of x minus integral. What is this? 2x integral. Differentiation of x square to 2x है. What is integration of e raised to 3x? Again it is e raised to 3x upon 3 dx. Okay, next x square e raised to 3x upon 3 minus, since 2 by 3 will come out, integral x e raised to 3x dx. Okay, x e raised to 3x dx. Now this is u, this is v. So what it would be? Again u integral v dx minus integral du by dx integral v dx. Okay, x square e raised to 3x upon 3 minus 2 by 3x. इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? e raised to 3x upon 3. Now this minus minus will become plus. Dx by dx is 1 and e raised to 3x का इंटीग्रेशन would be e raised to 3x upon.
स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से सुनो. 2/3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3x. इसका इंटीग्रेशन क्या है? e raised to 3x upon 3. फिर से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये 2/3 यहाँ पे फिर से आएगा. dx by dx is 1 and e raised to 3x is e raised to 3x upon 3. Okay. So what it is? X square e raised to 3x upon 3 minus 2/9. Okay. Then this 2/9 will come out. What is integration of e raised to 3x? Again, it is what? E raised to 3x upon 3 plus. This should be your answer, which is your option number C. 27 हो जाएगा. 2/27 it would be. 2/27 into e raised to 3x. So check it out. Done? Okay. Next question number 2. Try करोगे एक बार. Okay. Integral 8x square upon x cube plus 2. I think ये क्वेश्चन हो चुका है क्या? क्वेश्चन हुआ है शायद से. हाँ, ये क्वेश्चन हुआ है. टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो. It's same as your टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2. ओके. दिस वी हैव डन. हाँ, तो अभी करने की कोई जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 नहीं. क्वेश्चन नंबर 3 इज न्यू आई गेस. हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हुआ है. ये भी एक्चुअली टाइप 3 में नहीं आता है, बट ठीक है. चलो ट्राई करो. What I have to do in this? हाँ, क्या समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को देख के क्या समझ में आ रहा है? बोलो. Who can tell me? क्वेश्चन को देख के क्या समझ में आ रहा है? Who can tell me? Correct. T should be equal to 1 plus log x, है ना? T should be equal to 1 plus log x. Yes, try out. What I have to do here? dt by dx कितना है? 0 plus 1 by x. Okay. तो dt x dt dt is equal to 1 by x dx. So 1 by x dx is what your dt.
और ये क्या है 1/t²। इसमें कोई डाउट? चेक इट आउट। 1/x एंड ये dx, इनको मैंने क्या लिखा? dt, और ये तो है ही t। ओके, तो क्या होगा फिर? ये t⁻² ना, -2 + 1/-2 + 1 + c। ओके, तो कितना है फिर ये? सो इट्स -1/t + c। तो t कितना हो गया फिर? 1 + log x। Done. Which option? Option C again. Okay. हाँ, अब ये क्वेश्चन बताओ मुझे, व्हाट इट शुड बी। क्वेश्चन नंबर 4 अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिंपल है बट देखने में डिफिकल्ट लगता है। Tell me, what should I do in this case? वेरी गुड, करेक्ट। बाकी लोग बता सकते हो यहाँ पे क्या होगा? What should I do in this case? लॉग का प्रॉपर्टी पता है सबको? लॉग ऑफ a⁻b क्या हो जाता है? b log a हो जाता है ना। तो वैसे ही ये जो x है वो क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा। ओके, तो क्या हो गया फिर? ये x log x स्क्वायर dx अपॉन क्यूब है ना। तो व्हाट इट इज? x का स्क्वायर फिर log x का स्क्वायर, तो ये x² और ये x² नीचे कट हो जाएंगे, तो क्या बचा फिर? यस, इट बिकम्स log x whole square upon x dx. Now what should I do? Yes, who can tell me what should I do? Is it u into v? No, it is not u into v. किसको t लेंगे केजल? वेरी गुड, परफेक्ट। t is equal to log x. Try out fast. dt by dx, चलो कोशिश करो फटाफट। b, okay, so dt by dx is 1 by x,
So dt is equal to what? 1 by x dx है ना. So 1 by x dx. So integral log x whole square upon x dx. So integral, this is what? T square 1 by x dx, it is dt. तो क्या हो जाएगा? t raised to 2 plus 1 upon 2 plus 1 plus c. t raised to 3 upon 3 plus c. T is what? Log x. T is what? Plus c. Then okay. So next. Next question में एक्चुअली इट इज फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रल, बट अपन उसको कैसे सॉल्व करेंगे? अपन विदाउट डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे उसको, आई मीन विदाउट लिमिट्स सॉल्व करेंगे उसको. ठीक है, 1 to 2 हटा दो, ये जो 1 to 2 है ना इसको हटा दो, बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रल अभी अपना होने का है ना, तुम्हें नहीं समझ में आएगा वो. सो इसको यहाँ पे रख दो, सिर्फ log ऑफ dx to the base e. चलो ट्राई आउट फटाफट. What you will do first? No, you can't cut E. It is not E upon E, Ayusha. It is not E upon E. See, we have one property, log AB is equal to log A plus log B. है ना? So what I can do? Log AB is log A plus log B. Okay. So what it is? Here it is what? Log e to the base e, it is 1. है ना? बताया था मैंने, e नहीं लिखा तो भी चलता है. और ये भी बताया था मैंने, क्या बताया था? log a to the base a क्या होता है? 1 होता है. So log e to the base e is 1. This is what? Log x to the base e whole thing raised to n whole divided by x, and this is dx. All right, okay, chalo now try out fast. Okay, what is the property of log x to the base e? It's not property casual. It's like
if whenever you say log x in case of calculus, by default base is e. By default base is what? E. Okay. By default base is e. So ऐसा कुछ property नहीं है वो. It is by default base is e. Okay. So कुछ property नहीं है वो. So yes, क्या करना पड़ेगा अभी? You can tell me what should I do next? What should I do next? What should I do next? Tell me fast. Correct. T is equal to what? 1 plus log x. So what is dt by dx? It's 1 by x. Okay. So dt is what? 1 by x dx. So 1 by x. देखो, this is your question now. Okay. इसको क्या लिख सकते हो? 1 by x को dt लिख सकते हो ना, 1 upon x dx. dt लिख सकते हो. और ये क्या है? t. Okay. So what it is? T raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. So t is what? 1 plus log x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. Okay. तो उन्होंने एक्चुअली लिमिट सब्स्टिट्यूट किए हैं, तो हमें वो सब नहीं करने के. ठीक है, हमें वो सब नहीं करना है, लिमिट्स वगैरह सब्स्टिट्यूट नहीं करना है. मुझे बस ये क्वेश्चन तुम लोगों को बताना था, बिकॉज यहाँ पे अपन ने लॉग का एक प्रॉपर्टी यूज किया है, इस वजह से मुझे क्वेश्चन बताना था और कुछ नहीं. ओके, सो ये अपन डेफिनेट इंटीग्रल में कर लेंगे. सो आई होप देयर इज नो डाउट. क्वेश्चन नंबर 5 में बस यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी यूज करना है. लॉग ए बी. लॉग ए बी इज व्हाट? लॉग ए प्लस लॉग बी. ओके, now question number 6. Tell me fast.
चलो ट्राई टू सॉल्व दिस. आया किसी का आंसर? आया आंसर? t is equal to log x. सिंपल है ना? So dt by dx 1 by x. dt is equal to 1 by x dx. So integral 1 by x dx dt now. So it becomes log t dt. सही है? Yes, ये क्वेश्चन है ना तुम्हारा. This is your question. तो इसमें 1 by x dt हो गया और ये हो गया log t. अब ये 1 into log t है ना? ओके, इट इज 1 into log t. तो क्या करोगे फिर? What you will do now? This is u and this is v. क्या हो गया श्रद्धा? श्रद्धा नहीं, संतोष होगा ऑन बिहाफ ऑफ श्रद्धा. हाँ बोलो. गुड मॉर्निंग मैम. क्या हुआ? गुड मॉर्निंग बोला सिर्फ? हाँ, सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलने के लिए अनम्यूट किया क्या? संतोष. चलो नेक्स्ट. मैम आप ऑनलाइन में आएंगे? अरे कल, अरे यार मेरे को आने में ही 7 बज गया यार, तो फिर आना फिर पॉसिबल नहीं होता ना, इस वजह से 7-7:10 हो गए थे अराउंड. हाँ 8 बजे तक आ सकते थे ना मैडम. 4 बजे तक, 8 से 9 कितना लेक्चर लूँ यार. और फिर बाद में मेरे को 10 तक अगला ले लेक्चर भी तो था, अगला लेक्चर भी तो था बाद में, तो वो भी फिर डिले करना पड़ता ना यार. फिर कैंसिल किया तो अच्छा होता ना मैम. नहीं, फिर वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता. चलो u इंटू वी. अब क्या करोगे? u इंटीग्रल v dt माइनस इंटीग्रल du by dt इंटीग्रल v dt, है ना? तो क्या लिखोगे फिर आप? बताओ जल्दी. व्हाट शुड आई राइट नेक्स्ट? log t इंटीग्रल 1 dt इज व्हाट? t ना. इंटीग्रल 1 dt इज t माइनस इंटीग्रल log t का इंटीग्रेशन 1 अपॉन t. इंटीग्रल 1 dt इज t dt. ओके, सो t एंड t गए, माइनस इंटीग्रल 1 dt. सो t log t माइनस इंटीग्रल 1 dt इज t प्लस c. अब रीसब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को. t इज व्हाट? log x, है ना? और ये क्या हो जाएगा? log ऑफ log x माइनस log x प्लस c. ओके, तो विच ऑप्शन इज दिस? log x को कॉमन निकालना पड़ेगा अपन को. So, अंदर क्या बचेगा? log ऑफ log x माइनस 1 प्लस c. Okay, so which option is this? It is C option, है ना? It is what? C option. चेक करो एक बार, कुछ प्रॉब्लम है क्या? बोलो.
डन। समझ में आया क्या? देखो जरा, t is what log x, so dt by dx is 1 by x, so 1 by dx is your dt. Okay. Next question is next question is question number 7. अरे ये तो बहुत आसान है। e raised to x log n into e raised to x dx. चलो try out. Yes. रूल्स ऑफ इंडाइसेस यूज करने अपन को यहाँ पे, और कुछ नहीं. a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n. ओके, तो यहाँ पे क्या है? e raised to x log n, e raised to x, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स. ओके, तो यस, व्हाट इट इज. क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट है बट सिंपल है. अभी हिंट दिया, आप सॉल्व कर. Yes. How to solve this now? You can tell me. E raised to x log n plus x dx. E raised to x x को कॉमन निकालो. टेल मी क्या करेंगे फिर आप? What should I do next? आ रहा है किसी को? e raised to x की तरह ट्रीट करो इसको. इसकी तरह ट्रीट करना है. e raised to x की तरह ट्रीट करना है इसको.
अच्छा, ऑप्शंस आर रॉन्ग। ये हो सकता है, ऑप्शंस आर रॉन्ग। सी ई रेज टू एक्स, अभी ये क्या है, कांस्टेंट है ना। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स होता तो अपन कैसे इसको इंटीग्रेट करते थे, ई रेज टू एक्स अपॉन ए करते थे, है ना। तो ये एक ही जगह पे सिर्फ अपने पास क्या है, 1 प्लस लॉग एन है। ध्यान से सुनो केजल, ध्यान से सुनो। ई रेज टू एक्स डी एक्स अगर मेरे पास होता तो उसको कैसे इंटीग्रेट करते थे अपन, ई रेज टू एक्स अपॉन ए। लेकिन अब हमारे पास क्या है, ई रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एन है ना। तो मतलब ए के जगह पे कौन आया है, 1 प्लस लॉग एन आया है। ओके, तो फिर यस, व्हाट शुड आई डू, आई हैव टू डिवाइड इट बाय ए। तो कैसे करेंगे फिर, ई रेज टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एन अपॉन 1 प्लस लॉग एन प्लस सी। उस लॉग का कोई रूल नहीं है, उस लॉग का रोल नहीं है, बस यहाँ पे क्या है, इट इज जस्ट ए कांस्टेंट, log n is just a constant. Okay, so note it down fast. Done. Question number 8. Chalo, tell me fast. B. B answer. Okay. कैसे किया बताओ? Yes. What should I do? बोलो जल्दी, क्या करना पड़ेगा हमें? बोल संतोष, कैसे किया? अरे X raised to 3 equal to T. हाँ, this is t, है ना। So dt by dx 3x square. So dt upon 3 is equal to x square dx. तो अपना क्वेश्चन क्या बन जाएगा फिर यहाँ से, क्वेश्चन इज व्हाट, x cube into x square dx. So integral e raised to t x square dx is what, dt upon 3. Okay, so 1 upon 3 integral e raised to t dt. E raised to t is what, integration of e raised to t is what, e raised to t only plus c. ओके, तो t क्या है, x क्यूब ना। This is the answer. So which is your option number C? Okay, which is your option number C? Sorry, B na, B. Correct. All right. So substitution method का क्वेश्चन था, इसका नहीं था, u into v का नहीं था। चलो क्वेश्चन नंबर 9. सो जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है उसको t ले लो। सो x क्यूब का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, इस वजह से अपन उसको, x क्यूब का डिफरेंशिएशन वैसे तो 3x स्क्वायर होता है, बट हमें 3 से कुछ लेना देना है नहीं, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन x स्क्वायर. ओके, सो x स्क्वायर मिल गया ना हमें, x स्क्वायर dx, दैट्स इट.
नाइन्थ का सी. ओके. इंटीग्रल चलो ट्राई करो फटाफट. श्रद्धा का आ गया आंसर. श्रद्धा का आया, संतोष का आया, किसका आया? श्रद्धा तेरी तरफ से आया, संतोष की तरफ से आया आंसर. श्रद्धा का है मैडम. नहीं मैम, संतोष का है. हाँ, संतोष 2-3 क्वेश्चन आगे ही रहता ना. हाँ. नहीं मैम, सो गया था. सो गया था. क्या झूठ बोल रहा तू. क्या झूठ बोलता तू रे. चलो, किसको यू लेंगे, किसको वी लेंगे? इसको वी, इसको यू. सो यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रल वी डी एक्स. ओके. सो x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो. ओके. माइनस इंटीग्रल dx by dx is 1 e raised to minus x upon minus 1. अब ये माइनस एक्स e raised to minus x हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल e raised to minus x dx. ओके. सो ये माइनस एक्स e raised to minus x प्लस e raised to minus x अपॉन माइनस 1 प्लस सी. तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स ई रेज टू माइनस एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स प्लस सी. सो माइनस ई रेज टू माइनस एक्स को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा? एक्स प्लस 1 बचा. एनी डाउट? देख लो जरा. क्या किया अपन ने? यू इंटू वी लगाया ना. वाई दिस इज वी, वाई दिस इज यू? बिकॉज दिस इज एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल ई बाद में आता है, अलजेब्रिक पहले आता है. सो ए पहले आता है, इस वजह से ये u हो गया और ये v हो गया. सो क्या हो जाएगा फिर? u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du by dx इंटीग्रल v dx dx. सो इंटीग्रल e रेज टू माइनस x अपॉन x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो. माइनस इंटीग्रल dx by dx इज 1 इंटीग्रल e रेज टू माइनस x dx e रेज टू माइनस x अपॉन x का कोएफिशिएंट माइनस 1 और ये dx. ओके. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स ई रेज टू माइनस एक्स. सो इंटीग्रल ई रेज टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा फिर? ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 प्लस सी. माइनस ई रेज टू माइनस एक्स बाहर आया, एक्स प्लस 1 अंदर बचा. डन. After second step, if we write 1 into e raised to minus x, कहाँ पे? यहाँ पे 1 into, तो उससे क्या होगा केजल? 1 into anything is same thing ना. And then you want to take u into v. अनम्यूट करती हूँ केजल तुझे. तू ऐसे अनम्यूट करके मुझे बता जो भी तेरा डाउट होगा. हाँ, अब बता. हाँ बोल बोल बोल. वो तभी समझ में आ जाता है सही से. बोलो बोलो बोलो. अनम्यूट नहीं किया मैंने. किया तो था. एक मिनट.
हाँ बोलो अब। मैम आप कभी कभी करते हो ना कि आप यूवी वाले फंक्शन में अगर एक ही फंक्शन दिया तो आप वन हाँ ऐड हाँ करते हो। हाँ हाँ, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे अपन log x के टाइम पे करते हैं उसको जनरली, तो log x के केस में मुझे इंटीग्रेशन ऑफ log x पता नहीं है, तब अपन वैसा करते हैं 1 into log x। बट यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन ऑफ e raised to माइनस एक्स पता है ना, तो वाई टू डू दैट। ओके, जब मुझे इंटीग्रेशन पता नहीं होगा तब मैं हेल्प के लिए 1 को लेती हूँ, और इस केस में क्या है, मुझे इंटीग्रेशन पता है e raised to माइनस एक्स का, जैसे कि यहाँ पे आई नो दैट e raised to माइनस एक्स इज e raised to माइनस एक्स अपॉन -1, तो क्यों लेंथी करने का सीन ऐसे। इंटीग्रेशन ऑफ log x हमें नहीं पता ना। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग किया है ना आपने। फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन ऑफ log x का, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x। इंटीग्रेशन ऑफ log x हमें डिराइव करना पड़ता है 1 into से। ओके, गॉट इट। यस मैम। हाँ चलो। मैम नहीं समझा। अरे अरे अरे, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, इसका 1/x लिखता क्या तू, बोल संतोष। नहीं मैम। 1/x नहीं ना, तो नहीं। इसका फॉर्मूला अपन के पास नहीं है, तो इस वजह से अपन इसको 1 into लेते हैं हेल्प के लिए, हाँ है ना। पॉइंट है। यहाँ पे हमारे पास इसका फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्यों फिर 1 लेने का, गेटिंग माय पॉइंट। चलो, नहीं जनरली वो मिस्टेक लोग करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ log x इज 1/x, इस वजह से मैंने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया। चलो x³ log x dx, टेल मी करेक्ट ऑप्शन फटाफट, टेल मी एक्यूरेट ऑप्शन। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यस पक्का, पक्का। भरोसा कर लूं, 10,000 देणार आहे का मैम? भरोसा कर लूं, हाँ मैम। कर लेने का क्या भरोसा। संतोष पे तो भरोसा ही नहीं है मुझे बिल्कुल। संतोष, भरोसा हाँ ही बोला नहीं, मैडम। भरोसा ही नहीं है तुझे। थँक्स मैम। कोणाचाच नाही माझ्यावर भरोसा, आई वडिलांचा आणि पेरेंट्सचा सोडून. मम्मी पप्पांचं पण नाही आहे का तुझ्यावर, असेच कांड करतो का तू। आहे. नाही मॅडम, मम्मी पप्पांचा आहे मॅडम, खूप आहे. किती अल्जेब्रिक एंड ठेवायला नको एक्सपोनेंशियल। त्यापेक्षा. अच्छा अच्छा अच्छा, चल कोणीतरी विश्वास करतं म्हणजे तुझ्यावर, चांगली गोष्ट आहे। आहे मॅडम आता. u इंटू वी है ना, log पहले आता है, अल्जेब्रिक बाद में आता है, तो क्या लिखोगे फिर, u इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रल वी डी एक्स। ओके, तो क्या हो जाएगा, x³ का इंटीग्रेशन x⁴ अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू x³ का x⁴ अपॉन 4 dx। सही है, 1/4 को बाहर निकालो, x⁴ and x⁴ dx। okay, so what it is, x⁴ log x minus 1/4, x⁴ is what, let's see, so which option, सी आ रहा था ना कुछ तो, हाँ सी आ रहा था, x⁴ अपॉन 4, अंदर क्या बचेगा, log x माइनस 1/4 प्लस सी। समझ में आई बात।
डन, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेट x raised to n log x with respect to x. ये तो आसान है यार, ये बहुत आसान है। आया क्या संतोष आंसर? संतोष आया क्या आंसर? संतोष बोलेगा मैंने क्या आंसर देने का ठेका लेके रखा है। शशांक अटेंड कर रहा है आज? अभी तक कोई मैसेज नहीं आया उसका। शशांक नहीं है? ऑप्शन ए मैम। ऑप्शन नहीं ना, गुड। यार शशांक क्यों अटेंड नहीं कर रहा है? शशांक नहीं है, उमेर नहीं है, क्यों नहीं आए ये लोग? होली खेले कल बहुत ज्यादा। ये पण खेळलाय बोली उचलून ठेव नाही जाणार आपण. बाहेर ये काय करायचं अरे श्रद्धा काय होते? संतोष के त्रास देतो का संतोष? ती छोटीशी आहे, तिला त्रास नको देऊ बाबा, तिचा जीव बघ. त्रास. व्हाइट बोर्ड पे कुछ भी लिख रहा है. क्या? व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कर रहा है वो. अच्छा व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कर रहा है क्या? अच्छा अच्छा हाँ. संतोष फीलिंग ले रहा है वो टीचर बनने की। नाही मॅम, त्याला समजून फीलिंग ले रहा है वो टीचर बनने की। अच्छी बात है, अच्छी बात है। टीचर बनना है क्या संतोष तुझे? संतोष प्रसाद सर के और मेरी लाइन में आना है क्या तुझे? हो मॅम। चलो बोलो तुमच्या क्या नंतर करो? तो आरसा चालवणार आहे मॅडम. हाँ बरोबर बरोबर। चलो बताओ जल्दी। log is u, this is v, है ना? So u इंटीग्रल, सॉरी हाँ सही है, v dx इंटीग्रल du by dx इंटीग्रल v dx, ओके। x raised to n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x raised to n plus 1 अपॉन n plus 1, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x into this is what x raised to n plus 1 upon n plus 1 dx। देखो n plus 1 तो कांस्टेंट है ना? तो n plus 1 को बाहर तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। गौरीश तो कब से बोल रहे हैं मैम मैं ऑफलाइन आने वाला था, ऑफलाइन आने वाला था, भरोसा ही नहीं है मुझे उस पर तो अभी बिल्कुल। सो 1 upon n plus 1 1 upon n plus 1 बाहर आ जाएगा, है ना? सो 1 upon n plus 1 x raised to n plus 1 log x इंटीग्रल x raised to n plus 1 upon x। ये 1 upon n plus 1 देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मैंने कॉमन लिया बाहर, ध्यान दो अच्छे से। और ये क्या है अपने पास बचा, क्या है यहाँ पे? x raised to n plus 1 upon x dx, सही है? ओके अब क्या करोगे? 1 upon n plus 1 ब्रैकेट में x raised to n plus 1 log x माइनस ये क्या है? x raised to n plus 1 अपॉन x dx ना। तो इस टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे? x raised to n plus 1 है ना,
और ये x रेज टू 1 है। एज पर रूल्स ऑफ इंडाइसेस a रेज टू m अपॉन a रेज टू n अगर अपने पास होता है तो हम क्या लगाते हैं, a रेज टू m माइनस n। तो क्या बचा फिर, x रेज टू n बचा, है ना। x रेज टू क्या बचा, n बचा। यस, समझ में आया। उमेर क्यों नहीं आया रे आज, उमेर क्यों अटेंड नहीं कर रहे संतोष? उमेर नहीं है, शशांक नहीं है, कुछ आता पता है क्या इन लोगों का? बहुत कैजुअली, शशांक नहीं लेता उ- कैजुअली। उमेर सो गए मैम, काय उमेर झोपेत आहे मॅम, उमेर झोपेत आहे। आणि शशांक भाऊ जिमला गेलेत. अच्छा, बोलो। टेस्ट इज आफ्टर 7th मिताली, आफ्टर 7th एनी डे, कोई भी दिन टेस्ट होगी आफ्टर 7th। चलो 1 अपॉन n प्लस 1 x इज टू n प्लस 1 log x माइनस x इज टू n, करेक्ट। सो x इज टू n प्लस 1, x इज टू n प्लस 1 को बाहर निकालो, प्लस c। सॉरी यहाँ पे एक बचता है ना अपना, उन्होंने बस वो n प्लस 1 जो डिनोमिनेटर में है ना उसको उन्होंने ऊपर लिखा है, n प्लस 1 रेज टू माइनस 1 लिखा है। ओके, वो जो डिनोमिनेटर में है उसको बस चलो अगला क्वेश्चन। इसमें आई होप किसी को कोई डाउट नहीं। हाँ बोल, केजल बोल, क्या डाउट है, बोल बोल बोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। अनम्यूट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं केजल। मैं मुझे ये करना पड़ेगा। इन लास्ट स्टेप इट शुड बी 1। नो नो नो, इट शुडंट बी 1। सी, यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैंने क्या किया, n प्लस 1 बाहर निकाला, करेक्ट। अब बात क्या हुई है ना, ये बाहर निकालने के बाद हमने जब x रेज टू n को इंटीग्रेट किया तब और एक n प्लस 1 आया है, तो वो तो रहेगा ना, वो बाहर नहीं आएगा। और एक n प्लस 1 बाकी है वहां पे, ये n प्लस 1, ये n प्लस 1 तो बाहर निकाला, बट आफ्टर इंटीग्रेटिंग देयर इज वन मोर n प्लस 1, देयर इज one more n plus 1. Okay.
चलो क्वेश्चन नंबर 12. Integral e raised to x raised to 4 minus 12x square dx. Chalo, tell me fast what should be the answer. अगेन ये भी अल्जेब्रिक फंक्शन है ना, ये एक्सपोनेंशियल है, तो दिस इज u, दिस इज v. बताओ, चलो ऑप्शन बताओ, फटाफट आंसर्स आने चाहिए. u इंटीग्रल v dx माइनस du by dx इंटीग्रल v dx. ओके, चलो टेल मी फास्ट. कितने टाइम तक कर्फ्यू है रे पुणे में? कितने से कितने तक? एक्चुअली मैं अभी कल आई तो मुझे कुछ आता पता है नहीं यार, इस वजह से पूछ रही हूँ. आज आई मतलब, तो इस वजह से पूछ रही कितने से कितने तक कर्फ्यू है. 8 के बाद है शायद ना, रात को. हाँ 8 के बाद है, करेक्ट. फोर टाइम्स बाय पार्ट्स लग रहा है इसको. ओहो बाप रे, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है यार. और आंसर तो कितने सॉर्टेड दिए हुए हैं उन्होंने. है ना, आंसर बहुत ही सॉर्टेड दिए हुए हैं. काम करो, लीव दिस क्वेश्चन. इसमें छोटा सा ना अपन करेक्शन करके उसको टाइप 4 में डाल देते हैं. इस क्वेश्चन को छोड़ दो, बिकॉज 4 टाइम्स बाय पार्ट्स आई डोंट थिंक इट इज, आई मीन दे विल आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. एंड ऑप्शंस को देख के मैं जिस टाइप का करेक्शन दिमाग में ला रही हूँ वो करेक्शन होना चाहिए यहाँ पे. सो लीव दिस क्वेश्चन, leave this question. After solving 4 times, Shraddha, after solving 4 times, अच्छा ठीक है, फिर करते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम. मुझे लगा आंसर ही नहीं आ रहा है. Then it is okay, then we will do it. E raised to x minus differentiation of this is 4x cube minus इसका डिफरेंशिएशन 24x. ओके, इंटीग्रल e raised to x. ओके, फिर से बाय पार्ट्स. दिस इज u, दिस इज v. चलो ट्राई
Yes. U into V, e raised to x, x raised to 4 minus 12x square इंटीग्रल u into v लगेगा फिर से u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du by dx इंटीग्रल v dx. Okay, then e raised to x, x raised to 4 minus 12x square minus what is this 4x cube minus 24x e raised to x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है e raised to x हो जाता है. ओके फिर प्लस इंटीग्रल इसका डिफरेंशिएशन 12x minus 24 ठीक है एंड ये e raised to x dx फिर से बाय पार्ट्स. ओके अगेन दिस इज u into v. यहाँ से e raised to x कॉमन निकाल लेते हैं. हाँ एक्चुअली बहुत बोरिंग है क्वेश्चन. x raised to 4 minus 12x square minus 4x cube plus 24x है ना plus u into v ना. So u integral v dx minus integral du by dx integral v dx. Okay, so what it is this is what 12 है ना. Differentiation is 12 e raised to x is e raised to x dx. इन कहाँ आ रहा है आंसर श्रद्धा आंसर नहीं आ रहा है. e raised to x कॉमन लेने के बाद कहाँ आंसर आ रहा है. तो गड़बड़ है इसलिए मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन में छोटा सा करेक्शन करेंगे अपन एंड दैट क्वेश्चन विल बिकम ऑफ टाइप 4. प्लस 12x माइनस 24 एंड ये आ जाता है माइनस 12. पूरा इंटीग्रेशन कर लिया मैंने. हाँ प्लस सी. तो अगर इसको सॉल्व भी करेंगे तो भी आंसर तो नहीं आ रहा है ना फिर. इसीलिए मैंने बोला ये ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे. देयर हैज टू बी सम करेक्शन. मुझे लगा कुछ कैंसिलेशंस होते होंगे तो आता होगा आंसर. मैम कैंसिल होता है ऑप्शन बी आएगा. कैसे रे कहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है. मैम आपके व्हाट्सएप पर भेजता हूँ मैम. हाँ भेज एक बार व्हाट्सएप पे. कैंसिल कैसे होता है. v u into integral v dx minus dy dx 12x minus 24. कहाँ पे 12x स्क्वायर. ओ 12x स्क्वायर. हाँ 12x स्क्वायर करेक्ट मैम 12x स्क्वायर आएगा यहाँ पे. फिर यहाँ पे 12x स्क्वायर होगा ना और फिर ये आएगा 12x करेक्ट. ये आएगा 12x. आंसर आहे तो का मैम. काय म्हणतोयस.
आंसर है तो का आंसर क्या बोल रहा है? मैम 1 मिनट व्हाट्सएप चेक करना. 1 मिनट. हाँ. ओए. श्रद्धाची. x⁴ चलो ठीक है. अच्छा सेपरेटली किया क्या तुम लोगों ने? सेपरेटली किया तो भी आना हाँ चाहिए, ऐसे किया तो भी आना चाहिए वैसे तो. सेपरेटली किया ना तो भी आना चाहिए और ऐसे किया तो भी आना चाहिए. 1 2 3 4 5. हाँ यहाँ तक तो पहुंच गए अपन. हम्म. 1 मिनट पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर कॉमन लेते हैं, ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से. e⁴ minus 12x² minus 4x³ plus 24 plus 12x² minus 24 e⁴x minus u into v लगेगा फिर से है ना. So u integral v dx minus integral du by dx integral v dx. अब e⁴x x⁴ 12x² 4x³ plus 24 12x² minus 12x. This is e⁴x integral. This is 12 e⁴x. Okay. Plus 12x² minus 24. यहाँ से मैंने e⁴x को कॉमन निकाला. अब यहाँ पे 12x e⁴x माइनस 12 e⁴x. फिर से कुछ तो गड़बड़ है रे, फिर से कुछ तो गड़बड़ है. ये दोनों तो कट हो जाएंगे, ये दोनों कट हो जाएंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन ये कहाँ कट हो रहा है? ये 24x आएगा शायद से. हाँ ये 24x आएगा. तो ये भी 24x आएगा. 24x आएगा. 1 मिनट बताती पहले यहाँ का हिसाब लगने दो. फिर ये 24 आएगा. यार फिर भी कुछ तो गड़बड़ हो रहा है एक्चुअली. 4x³ minus 24x. यहाँ पे 24x है शायद से. हाँ 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 यहाँ पे 24x है, यहाँ पे 24x है. करेक्ट. हाँ अब सही है. तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा फिर? e⁴x x⁴ minus 12x² minus 4x³ plus 24x plus 12x² minus 24. ओके. और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. अब क्या हो जाएगा? e⁴x ब्रैकेट के अंदर x⁴ minus 12x² minus 4x³
plus 24x plus 12x square minus 24 minus 24x plus 24 and ये plus 24 minus 24 कट हो जाएंगे minus 24 plus 24 कट हो जाएंगे plus 20 and ये कट हो जाएगा. ओके अब सही है. This is what x raised to 4 minus 4x cube plus करेक्ट. सेपरेट सेपरेट करते तो थोड़ा और इजी हो जाता था एक्चुअली. मतलब इंटीग्रल e raised to x x raised to 4 एंड इंटीग्रल 12x स्क्वायर e raised to x वो सेपरेट करते तो शायद ज्यादा इजी हो जाता था. केजल कहाँ पे प्रॉब्लम है? फोर्थ लास्ट 1 2 3 4 यहाँ पे प्रॉब्लम है. यस यहाँ पे 24x था एक्चुअली. मैंने वो बाय मिस्टेक 24 लिखा था, इस वजह से शायद तुम्हें प्रॉब्लम हुई होगी. ये 24x था. चेक करो एक बार. क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क के लिए करो यार, आसान है वो. इंटीग्रल x e टू रेज टू x ना, ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, ये अलजेब्रिक हो जाएगा, तो ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा. ये होमवर्क के लिए कर लेना, वो आसान है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11 में सॉरी 12 में कोई डाउट है? डन. ओके चलो लेट्स stop here now. Okay, we'll continue in next class. Okay, मैम बोलो. समझलं नाही मॅडम 12th वाला. हे वाला 12th वाला हाँ मैम. देखना, यहाँ पे u इंटीग्रल v dx किया, ठीक है. हाँ. ये u था, ये v था, फिर ये हाँ. डिफरेंशिएशन ऑफ v किया, ठीक, ये आया. हाँ मैम. अब फिर से हाँ u मैम. बाय v, ये u आ गया, ये v आ गया, ठीक है. आंसर तो तूने हाँ. फाइंड आउट किया यार, फिर कैसे नहीं समझा? मैडम क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नहीं आ रहे मैम. 13 का आंसर है, 12 का बोल रहा है तू. 13th का. मैं 12th एक्सप्लेन कर रही थी तुझे, हाँ हाँ बोल रहा तू. क्या सॉरी बे तू, मैम, आप कैसे है? u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du by dx इंटीग्रल v dx, ठीक है ना? मैडम x into 2 raised to x है. हाँ मग काय येणार x into 2 raised to x divided by log 2 minus आणि क्या आएगा log 2 ना? हा minus 2 raised to x log 2 ह्याचा डेरिवेशन काढायला लागणार. कैसे? dx का डेरिवेटिव लेंगे ना. u क्या है? हाँ x मैम. है ना तेरा, तो ये बन आएगा ती ना. 1 होणार ना मॅम. हा 2 raised to x log 2. ये नहीं आ रहा क्वेश्चन तुझे? ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तुझे? हा मॅम एक मिनिट पुढे चालू ना. एक मिनिट. मतलब तेरे से तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने. मॅडम ऑप्शन सांगा ना मॅम, त्यात समजा ना त्यामुळे. तेरे से तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने. एक मिनिट मॅम, फोटो काढून पाठवतो मी सोडवलेलं. इंटीग्रल 2 raised to x dx. तो क्या हो जाएगा फिर? x 2 raised to x अपॉन log 2 माइनस, हाँ मतलब ऑप्शन में नहीं हो सकता, ऐसे हो जाएगा शायद. मतलब ऑप्शन में ना हो ऐसा हो सकता है. तेच 2 raised to विचारतो ना x. मॅम. अच्छा यही पूछ रहा है क्या तुम? x माइनस 1 by log 2 प्लस c. असं ऑप्शन आले मॅडम. मी तुम्हाला ती फोटो पण पाठवले. अच्छा हाँ, नन ऑफ दीज है ना फिर अपने पास. क्या है यार संतोष. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. चलो ये भी सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है चलो, तो मिलते हैं कल फेस टू फेस. क्या मैम? 7:30 बजे होगा क्लास कल. ठीक है हो मॅम, नको परवडत नाही. 7:30 बजे. हाँ यार, अरे वो अगला क्लास जो है ना, उनका फिर से स्केड्यूलिंग करने में प्रॉब्लम हो जाती है इस वजह से. तो इस वजह से कॅन्सल करा मॅम त्यांची. ए कॅन्सल करा, काय कॅन्सल? सगळ्यांचे कॅन्सल करून तुमचेच घेत बसते आता. काय माणूस आहे. हा चालेल.
चालेल मॅम. हाँ, चालेल 7:30 बजे आओ कल, ठीक है? ओके, चलो ओके मॅम. बाय बाय. झोपेतून कसं येईल?